Hello, Namaskar, Khammadhani people. My name is Nandita Sudha Tiwari and welcome back to our channel, that is Professor Tiwari. I hope you guys liked our video lecture. So if you do, then please hit the bell icon, like, share and subscribe to this channel. So in last lecture, we have discussed about speed time graph and distance time graph. We have understood that how we can calculate the value of a speed using a mathematical tool called slope in distance time graph, and we have also understood that how we can calculate the value of acceleration using speed time graph again by using slope. We have also understood that how we can calculate distance traveled in a speed time graph by just simply understanding that distance traveled is nothing but the area enclosed between the speed time curve. For example, this is the curve. So this is, let's just say from point here to here, this will be a speed time curve and this will be a time axis. So the area enclosed between the speed time curve and time axis will gonna give you the distance traveled. So today we will gonna move ahead in chapter motion of class 9 and we will gonna see few graphical examples or questions or numericals so that our understanding will become more clear. Okay, so as you can see the diagram over here only, and this question is basically asking few questions, okay, that we need to solve. So as you can see that this is a graph, so maybe there is some body, some moving body which has covered some distance and it has some speed. The speed is varying and there's this time. Okay, so we can see that the difference in time is of 4 seconds. Okay, and the difference in speed is uniform. So how we can do is, the very first question which the numerical is basically asking is, you need to calculate what type of motion is represented by OA. Okay, let's just name this graph. This point is O. Let's just say this point is A, this point is B, and this point is C. I guess this is the naming. So what they are saying is, what type of motion is represented by OA? O is this point, A is this point. So we need to calculate, we need to tell, just wait a second. We need to tell motion for OA graph. Okay. So what it is asking what type of motion is OA. As I said, whenever you see a straight line in a graph, that means we are talking about uniformity and uniform word will be there. जब भी straight line होगी तो मतलब speed time graph या distance time graph, किसी भी graph में अगर straight line है मतलब कुछ चीज uniform है उस चीज में, ठीक है? तो uniform हो गई, एक चीज तो याद है. दूसरी चीज speed and time. When we talk about speed time graph, then definitely we are talking about what? We are talking about acceleration. So in this particular case, what can be uniform? In acceleration, we talk about change in velocity. So that means the change in velocity or change in speed is uniform. So what kind of a motion it will be? Motion for line O to A will be uniform acceleration. Okay, you can write uniform acceleration or uniformly accelerated motion because the change in velocity is यूनिफॉर्म और द वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज्ड बाय यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. द पार्ट B इज सेइंग व्हाट टाइप ऑफ मोशन फॉर AB ग्राफ के लिए आपको मोशन बताना है. सो दिस इज AB. As we have learnt in speed time graph, the very first type of graph is when the speed of the body is constant over the duration of time. अगर speed किसी moving body की constant है over the duration of time, मतलब time कितना भी निकल जाए, but अगर speed same ही है, change ही नहीं हो रही है, आपका 1 hour पे भी first 1 hour पे भी 10 किलोमीटर पर आवर, next 1 hour पे भी 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब speed constant है. तो अगर speed constant कब होती है? When the straight line is parallel to time axis. In a speed time graph, if the graph line or a speed time curve, what we say, it is a speed time curve. So if the speed time curve is parallel to time axis, then we say that the speed is constant over the duration of time, and for such case acceleration is 0. तो AB ग्राफ के लिए हम क्या कह सकते हैं? ये इसमें क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड आप कह लें या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड भी. क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, एक ही बात है. So what you need to keep in mind, you need to keep in mind that whenever we are talking about speed time graph, if there is a straight line from the origin or not even from the origin,
then first of all the straight line shows the uniformity, and if the straight line is parallel, if the speed time curve is parallel to time axis, in that particular case we say that the moving object's speed is constant over the duration of time, and for this particular case acceleration will be 0. आपको ये mention करना पड़ेगा. तो किस तरह का मोशन हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड का मोशन हो गया, मगर एक्सेलरेशन इस केस के अंदर 0 होगा. ठीक है. Then the next thing it is asking, what type of motion is represented by BC? So this is the third line BC. Okay, so from B to C, what kind of a motion you can observe? See, when I say that the straight line is going from left direction to right, that means it is acceleration, means this is sloping up or moving up. But when the graph is sloping down or moving down, that means it is retardation or negative acceleration. तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? मोशन फॉर B to C ग्राफ किस तरह का मोशन हो जाएगा? हम यहां लिख सकते हैं यूनिफॉर्म retardation. What kind of a motion it is? Uniform retardation. Okay, or we can say what's the other name of retardation? That is negative acceleration. तो हम इसको ये भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये चीज हो गई. तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए. अब इसमें नेक्स्ट चीज पूछी है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. आपको बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है. तो अब आप ध्यान रखिए, यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, यहां कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड है, और यहां पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या फिर यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है. तो इन्होंने पूछा है कि ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालिए. तो एक्सेलरेशन ग्राफ तो यहां से लेके O से लेके C तक है, बट एक्सेलरेशन सिर्फ कहां से कहां तक निकलेगा? फ्रॉम O to A only we can talk about the acceleration, because at this place there will be no acceleration and for this place there will only be retardation. Okay, so what will be the D? देखिए D के ऊपर क्या हम बात करें? D क्वेश्चन हमारा है acceleration we need to find. Okay, what we need to find? We need to find the acceleration of the graph. We need to find the acceleration of the graph. So what will be the acceleration? As I said, जब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम स्पीड निकालते हैं. स्पीड किससे निकालते हैं? ग्राफ की स्लोप से. स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन. एंड अगेन हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन स्पीड टाइम ग्राफ? बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहां आ रहा है? सबसे पहले तो आप यहां लिख लीजिए एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A. एक्सेलरेशन कहां से कहां तक है? O से A तक. तो एक्सेलरेशन निकालना है मतलब स्लोप निकालना है. व्हाट इज स्लोप? राइज डिवाइडेड बाय रन. एंड व्हाट इज राइज? राइज इज द वर्टिकल मूवमेंट एंड रन इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. तो वही है, ये ग्राफ के लिए हमें यहां इस कर्व के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है. कोई भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, कहीं से भी कंसीडर कर सकते हैं, यहां से भी यहां से भी. पहले पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस चलिए और दूसरे पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो लेट्स जस्ट से वी आर मूविंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन फर्स्ट. So we have chosen one point is the origin and the other point is this point because here यहाँ पे ये खत्म हो रहा है ग्राफ. तो यहाँ से आप वर्टिकल मोशन जो है अपन अज्यूम कर लेते हैं, ये हमने जो है वर्टिकल मोशन मूव किया. ठीक है, सो दिस इज द वर्टिकल मोशन एंड देन दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल मोशन बिकॉज यहाँ पे मीट करना होता है आपको सेकंड पॉइंट से. सो दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. वापस कह रही हूँ, आप वर्टिकल यहां से भी चल सकते हैं, ये यूं वर्टिकल चल के आप यूं हॉरिजॉन्टल भी चल सकते हैं, एक ही बात है. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर के अंदर. तो ये आपने वर्टिकल चला एंड देन यू हैव कवर्ड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. सो नाउ व्हाट वी कैन से, यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट गिव सम नेम टू इट. दिस इज OA and let's just say BC. So this point is D and this point is E. अपन वहां पे भी करना पड़ेगा, तो हमने नाम लिख दिया. So this is D point. Okay, now how can you calculate the acceleration for it? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? स्लोप निकालना है. सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा. और स्लोप क्या होगा इस केस के अंदर? दिस बाय दिस वर्टिकल मूवमेंट मतलब राइज एंड रन. सो ये कितना हो गया? ये यहाँ पे लेट्स जस्ट से इसको भी ड्रॉ कर देते हैं. ये 6 पॉइंट पे आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज वर्टिकल, दिस इज 6 एंड दिस इज 4. सो इट विल बी 6 by 4. सिंपल मैथमेटिक्स है. It will be 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन निकल गया आपका. ठीक है, अब आपको इसमें क्या एक्सेलरेशन निकल चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी. अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी. सो रिटार्डेशन देखिए कहां पे है. ये एक्सेलरेशन का पार्ट था, यहां तो कुछ होगा ही नहीं,
दिस विल बी द रिटार्डेशन पार्ट फ्रॉम बी टू सी, हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन निकालना है, तो अगेन रिटार्डेशन है क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है, तो वो भी कैसे निकलेगा, ग्राफ के स्लोप से, ग्राफ क्या है बी टू सी, तो अगेन आप देखिए क्या करेंगे इसके लिए, वही आपको वर्टिकल मूवमेंट करना है, ये पॉइंट कंसीडर करा, तो ये आपने वर्टिकल मूवमेंट कर लिया, एंड देन दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो आपको ई हो गया ना, हाँ देखिए ई हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन आपको किस चीज के लिए निकालना है, बी टू सी, बी टू सी आपको रिटार्डेशन निकालना है, तो वही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल राइज, एंड दिस इज 1, सो ये हो गया 6, एंड दिस विल बी 10 to 16 विल बी अगेन 6, तो ये कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन के लिए r इक्वल्स टू 6/6, एंड इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे रिटार्डेशन तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मगर अगर आप इसको r की जगह a लिखें, अगर इनको आप r की जगह a लिखें, a इक्वल्स टू, तो ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे बताया था कि अगर आप सिर्फ रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं उस केस में बस आपको माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा, एक ही चीज है, ठीक है, यहां तक ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कहां से कहां तक, ए से बी तक आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, so let's just rub this side, okay, so that we can do it easily, ठीक है, so what we need to calculate distance travel from A to B, तो ये देखिए E था, this will be the F point, distance traveled from A to B, A से B तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो मतलब इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस, इस स्पीड टाइम कर्व के लिए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या था, एरिया एनक्लोज बिटवीन द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस। तो अब आप देखिए कि हमने इसलिए ये परपेंडिकुलर खींचे थे, बिकॉज अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो आपको एरिया को क्या करना पड़ता है, एनक्लोज करना इज वेरी नेसेसरी। तो अगर आप, जैसे मैं कह रही थी कि आप इधर से भी यूं चल के यूं जा सकते हैं, एक ही बात है, बट अगर आप इधर से यूं चलते तो ये वाला एरिया एनक्लोज नहीं होता, ठीक है, वो फिर भी आपको एज्यूम करे परपेंडिकुलर ड्रॉ ही करना पड़ता, तो ये हमारा एरिया ऑलरेडी एनक्लोज है, और जैसे मैंने कहा था कि एरिया आपको पहचानना आना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ एरिया इट इज रेक्टेंगल, तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, यू कैन राइट इट डाउन, the distance travel from A to B is the speed time curve, is the area enclosed between the speed time curve AB and the time axis DE, तो ये कितना हो जाएगा, it is equals to area of rectangle, and what is the area, DABE, और क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल DABE, that is length into breadth, so what will be the length, DA, okay, and the breadth will be DE, so it will be DA multiply DE, तो आप easily कैलकुलेट कर सकते हैं, DA कितना हो जाएगा, अगेन इट इज 6, and what will be DE, it is again 6, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, अब हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि आपने D to A, ये आपको एरिया का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना था, तो मतलब आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये D to A आप जा रहे हैं, तो ये तो यहाँ से कितना हो गया 6, और D to E, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, ये मैंने आपको बताया था, आप चाहे ग्राफ पेपर पे अगर आपको ड्रॉ है तो आप 1 2 3 4 करके निकाल सकते हैं, वरना 10 - 4 तो वैसे भी 6 ही आएगा, सो इट विल बी 36 मीटर, तो ये हमारा एरिया डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी ने ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना है, 36 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये हो गया, ओके अच्छा, अब इसमें आप ऐसे ही देखिए, ये डिस्टेंस ट्रेवल अगर टोटल बोला जाए तो वो तो ओ से लेके सी तक किया गया है, अभी हमने सिर्फ ए बी तक निकाला है, आप चाहें तो ओ ए के लिए भी डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं, ठीक है, ये करके देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे, देखिए एफ ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम कहां से कहां तक, ए बी हो गया, ओ ए निकालते हैं, फ्रॉम ओ ए, डिस्टेंस ट्रेवल ओ ए के लिए, तो ये स्पीड टाइम कर्व है, ये टाइम एक्सेस है, तो ये एरिया एनक्लोज करना इधर भी जरूरी था, इसलिए इधर से हमने परपेंडिकुलर लिया। अब आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ऊपर भी आप इसे एनक्लोज कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो एक तरीका तो है, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ, किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी,
क्या है आपका, ये डिस्टेंस ट्रेवल का एरिया है, स्पीड टाइम कर्व टाइम एक्सिस के बीच का एरिया ये है, तो ट्रायंगल OAD के बराबर, और ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए कि वो क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, सो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइट, सो दिस इज 6 एंड दिस इज 4, सो 6 मल्टीप्लाई 4 कैसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, सो इट विल बी हाफ, बेस इज O2D, so it will be 4 multiply height is from here to here, so it will be 6 and it will be solve कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 मीटर। और अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के उससे करते हैं तो आप क्या करेंगे कि ये निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज O फ्रॉम कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहां से यहां तक, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब हाफ मल्टीप्लाई अगेन 6 मल्टीप्लाई 4, तो चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट ट्रायंगल के फॉर्मूले से करें एक ही चीज आएगी, तो ये 12 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए नेक्स्ट चीज हम वैसे किसके लिए निकाल सकते हैं, B to C के लिए, तो ये एनक्लोज्ड है, यहां तो रेक्टेंगल कुछ फॉर्म है ही नहीं, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ मल्टीप्लाई बेस इज दिस, सो हाफ मल्टीप्लाई 6 सो इट विल बी, इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, G ABCDEFG H क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम B to C कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 6, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए यहाँ पे वो आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज 6 एंड दिस इज 6, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ये आपको यहां से निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप कैसे निकालेंगे, ये निकाल चुके हैं, O to A का 12 मीटर, A से B का हमने निकाला, इधर कहाँ निकाला था, ये 36 मीटर, और ये यहां से यहां तक जो भी आएगा ये 18 आएगा, ठीक है, ये 18 मीटर आएगा, तो मतलब 18 प्लस 12 प्लस 36, तो जो भी है आपका टोटल, वो टोटल आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, तो आपको ग्राफ आना जरूरी है, पढ़ना, कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना है तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें स्लोप निकालने से, और अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो सिर्फ स्पीड टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच के एरिया को एनक्लोज करें, फॉर्मूला लगाएं और आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं एंड उसके बाद आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर जो है हो जाएगा। These numericals are important to solve because हम कई बार सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, आप अगर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, आप थ्योरेटिकली तो जानेंगे बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तभी हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, और प्रैक्टिस बढ़ेगी तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है ये क्वेश्चन नंबर 2, और यहां बोला गया है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो एक कार है, ऑब्जेक्ट है कार, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पे कार मूव कर रही है, और कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। द फॉलोइंग टेबल गिव द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट। अच्छा ठीक है, हमें इसमें क्या कंडीशन दिया गया है, हमें एक टेबल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ग्राफ प्लॉट करके आपको बाकी की चीजें निकालनी है, सो दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, मैं डेटा लिख देती हूँ। जब टाइम 0 सेकेंड्स था, यहाँ सेकेंड्स, यहाँ मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 0 सेकेंड था उनके लिए स्पीड क्या थी 5, देन यहाँ पे 10 हुआ तो ये 10, जब यहाँ 15 हुआ तो यहाँ पे 20, देन 20 पे 30 एंड देन 25 पे व्हाट इज 40 एंड देन 30 पे 50। सो आपको डेटा गिवन है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ आप लोग तो स्केल को यूज करके जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे प्रॉपर उससे, बट यहां मैं आपको एक थोड़ा सा रैंडम आइडिया दे देती हूँ। ग्राफ प्लॉट करना है तो ये हमने जो ग्राफ है वो मान लिया, यहां आपकी क्या आती है स्पीड, यहां क्या आता है आपका टाइम, यहां सेकेंड्स, यहां मीटर पर सेकेंड्स, बस आपको कुछ नहीं करना, प्लॉट करना है। देखिए ग्राफ, पहली वैल्यू प्लॉट करते हैं, यहां दे रखा है
5 to 30, मतलब 5 के डिफरेंस पे। तो पहले आप इधर प्लॉट कर लें, कितना हो जाएगा, दिस इज द 0 पॉइंट, देन दिस इज 5, देन दिस इज 10, दिस इज 15, this is 20, then this is 25 and this is 30. Okay, then for time 10 का डिफरेंस है, 0 यहाँ पे है, this is 10, this is 20, this is 30, this is 40 and this is 50. अब 0 पे कितना है, 5, तो ये 0 पे 5, ये हमने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। फिर 10 पे 10, so this is 10 and this is 10, तो ये हमने इसका ये एक पॉइंट मान लिया। देन 20 पे 15, so this is 20 and where is 15, this is over here कहीं पे, ये 15 हो गया। फिर 30 पे 20, so this is 30 and where is 20, यहाँ पे, तो ये हमने ये कर लिया। देन 40 पे 25, 40 पे यहाँ पे ये हो गया 25, ठीक है। फिर 50 पे 30, so this is 50 and somewhere here is 30। कुछ नहीं करना है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया आपका ग्राफ। अब आपको देखिए क्या करना है, ग्राफ बन चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन इस केस के अंदर, यहां से सबसे पहले तो आपको एरिया एनक्लोज करना पड़ेगा, ये ग्राफ का एंड पॉइंट है, तो ये हम जो है एनक्लोज कर देते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां देखिए, ये क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। और ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां तक है 30, दैट मींस 30 माइनस 5 एंड व्हाट विल बी टाइम, टाइम यहां से लेके यहां तक है, सो इट विल बी 50, सो 25 डिवाइड बाय 50, जो भी आंसर आए कैलकुलेट करें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, सिंपल। नेक्स्ट चीज आपसे पूछिए इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड्स, इस पूरे 50 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तब आप कैसे निकालेंगे, देखिए शेप, हम लोगों ने ये शेप ग्राफ 3 में, स्पीड टाइम ग्राफ का जो आपका ग्राफ था उसमें हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था, हमें थर्ड ग्राफ था। तो ये शेप कैसा लग रहा है, ये साइड पैरेलल है इस साइड के, तो आप क्या कह सकते हैं, लेट्स जस्ट नेम दीस पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, this is B point, this is C, this is D, this is E and this is F and let's just say this is ABCDEFGH, ठीक है। तो OA तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये FG हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, OA is parallel to FG, आपको समझ ही आ रहा है कि OA जो है वो पैरेलल है FG के। अगर किसी एनक्लोज्ड फिगर में कोई दो साइड पैरेलल और कोई दो साइड अनपैरेलल हो जाए, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो फिगर क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप यहां देखिए क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको जो दूसरी चीज निकालनी है वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन 50 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है। क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ टू पैरेलल sides, sum of two parallel sides multiply height divide by 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप बस लगा दीजिए, OA कितना है, sum of two parallel sides is, एक साइड OA है दूसरी FG है, so this is 5 and this is 30, तो ये कितना हो जाएगा, 5 plus 30 multiply height, height is this, so this is 50 divide by 2, 35 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 2, ये 25, तो आप बस सॉल्व कर लीजिए। 35 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, ओके 875 मीटर, दैट्स इट। हो गया, आगे तो कुछ और चीज तो आपसे पूछी नहीं है, दैट्स इट, ये हो गया। सो दिस इज हाउ वी डू न्यूमेरिकल्स। डेटा दे रखा है, ग्राफ प्लॉट करिए एंड देन आपको निकालना है सिंपल उससे। So that's all for today. If you like the lecture, then please hit the bell icon, like, share and subscribe to this channel so that it can reach to someone who is in need. And thank you so much. In our next lecture, we will gonna do the last topic from chapter motion. Thank you. Khamma Ghani.